السلام علیکم۔ ہمارا 29واں موضوع ہے شادی مبارک۔ مکہ سے جب کسی تجارتی قافلے کے دور کسی شہر کی طرف روانہ ہونے کے دن آتے تو پوری بستی میں تیاریاں شروع ہو جاتی۔ تجارتی منڈی کے اس شہر میں سبھی شہر والوں کی اس قافلے میں دلچسپی ہوتی۔ کہنے کو تجارتی قافلے پہ صرف گنے چنے لوگ جاتے، مگر سامان سے لدے جانے والے اونٹوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی۔ اونٹوں کے کجاووں میں کئی طرح کے سامان ہوتے۔ چمڑے کے پارچہ جار اور تیل کے بھرے پیپے تو مقامی صنعت تھے۔ خوشبوؤں کی بوتلیں، خشک دالیں، چاول، رنگیلے ریشمی کپڑوں کے تھان یمن سے ادھر پہنچے ہوئے ہوتے۔ خوش ذائقہ کھانوں کے مسالے، الائچی، سونف، زیرہ، کالی مرچ اور سلائی کے دھاگے، سینے کی سوئیاں، روئی کے بنڈل، ململ اور سوتی کپڑا یمن کی راہ سے ہندوستان سے ادھر آیا ہوتا۔ تجارتی سفر میں نکلنے والوں کو مہینے کے لیے اپنے شہر سے دور جانا ہوتا تھا۔ گرمیوں کے شروع میں تجارتی سفر شام کی طرف نکلتے تھے۔ شام کے شہر بصرہ کی منڈی تک پہنچتے پہنچتے اونٹوں پہ چل کے انہیں مہینہ سوا مہینہ لگ جاتا تھا۔ اتنا ہی وقت واپسی کا ہوتا۔ وہاں جو قیام ہوتا وہ الگ۔ 2.5-3 مہینوں کے لیے بستی پہلے سے تیاری میں جٹ جاتی۔ تجارتی سفر کے قافلوں میں اونٹوں پہ لدا سامان صرف ساتھ لے جانے والے تاجروں کا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں شہر بھر کے لوگوں کے خواب بھرے ہوتے تھے۔ اپنا اپنا سامان لوگ قافلے والوں کو دوسرے شہر میں منافع میں بیچنے کے لیے دے دیتے تھے۔ سامان لے جانے والوں کا ہر سودے میں اپنا الگ معاوضہ تھا۔ لوگ صرف سامان بھجوانے میں ہی دلچسپی نہ لیتے تھے، دوسرے شہر سے سامان منگوانے کا بھی انہیں اشتیاق تھا، جو اس بستی میں ناپید ہوتا۔ ہر کوئی جو سامان بیچتا یا منگوانے میں دلچسپی رکھتا، اسے قافلے میں ایسے شخص کی تلاش ہوتی جو ایماندار ہو، امانتوں کا رکھوالا، امین ہو، سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، پورا تولتا ہو، ملاوٹ نہ کرتا ہو، بدنیت نہ ہو، چاقو چوبند ہو، تلخ کلام نہ ہو، شیریں زبان ہو، خوش گفتار ہو۔ ایسا شخص جو ان کے مال و اسباب کی خرید و فروخت میں ان سے دھوکہ نہ کرے، اپنے اچھے اخلاق کی بدولت ان کے اسباب کو بہتر دام میں بیچے، زیادہ نفع کمائے اور کمائے ہوئے نفع میں ڈنڈی نہ مارے۔ گھر گھر میں شام کی طرف نکلنے والے تجارتی قافلے کی تیاریاں تھیں۔ کس کے کتنے اونٹ جا رہے ہیں، کیا کیا ان میں لدا ہوگا، کون کون جا رہا ہے، کون کون بھیج رہا ہے، ساری بستی میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ انہی دنوں بنو ہاشم کے 55 سالہ سردار ابو طالب کے کان میں خبر پڑی کہ مکہ کی معزز رئیسہ قریشی خاتون سیدہ خدیجہ کے زیادہ تر اونٹ اس قافلے میں ہوں گے۔ سیدہ خدیجہ قریش ہی کے قبیلہ بنو اسد سے تھیں۔ اس لحاظ سے سیدہ خدیجہ اور سردار ابو طالب دونوں کے پردادا آپس میں بھائی اور قریش کے معروف بزرگ قصی کے بیٹے تھے۔ سردار ابو طالب کو ملنے والی خبر سے اس لیے بھی دلچسپی تھی کہ سردار نے سنا تھا کہ سیدہ خدیجہ کی خواہش ہے کہ کسی طرح سردار ابو طالب کا 25 سالہ بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ اس کے اونٹوں کا سامان بصرہ لے جانے پر رضامند ہو جائے، جو پوری بستی میں سب سے امانت دار، راست گو اور خوش اخلاق جوان کے طور پر تسلیم شدہ ہے۔ بستی میں لوگ انہیں ان کے نام کے بجائے امین اور صادق کے لقب سے بلاتے تھے۔ کسی بھی تجارتی سفر میں ان کے اپنے لیے شمولیت ہر تاجر کے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ سردار ابو طالب نے سنا کہ سیدہ ختیجہ اپنی طرف سے بھیجے جانے والے آدمی کو ایک سفر میں 2 اونٹ کا معاوضہ دیتی ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ معاوضہ کچھ زیادہ ہو اور سفر کے لیے ان کا بھتیجا بھی رضامند ہو جائے۔ اگرچہ دل ہی دل میں اپنے بھتیجے کے لیے بصرہ کی طرف کے سفر سے وہ ہچکچاتے بھی تھے، کیونکہ انہیں 13 سال پہلے بصرہ کے رہا بحیرہ کی کئی باتیں یاد تھیں، لیکن گھریلو معاملات کی سلامت روی اور اپنے بھتیجے کے اچھے خوشحال مستقبل کے لیے انہیں وسائل کی بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے پہلے تو اپنے بھتیجے سے بات کی، انہیں سفر کے لیے آمادہ پایا تو سیدہ خدیجہ کی طرف گئے۔ سیدہ خدیجہ نے بہت تپاد اور احترام سے 55 سالہ دراز قد خوشحال حسال باوقار سردار کا استقبال کیا اور بتایا کہ وہ خواہش مند ہیں کہ سردار کا زیر کفیل جوان بھتیجا اس کے سامان سے لدے اونٹ مزاربت پہ بصرہ لے جائے۔ سردار نے ہمیں بھر لی اور زیر لبی بولا، معاوضے میں 2 اونٹوں کا سنا ہے، میرے بھتیجے امین کے لیے یہ معاوضہ زیادہ ہونا چاہیے۔
सईद खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हु सरदार की बात सुनकर मुस्कुराईं और बोली, सरदार आप किसी के लिए भी हुक्म करते तो मुआवजा बढ़ा देती। ये तो आप इस बस्ती की शान अल अमीन के लिए फरमा रहे हैं। इनका मुआवजा दूसरों से 2 गुना होगा। बस आप इन्हें राज़ी कर लें। सरदार खुश हुए, बोले वो राज़ी हैं। उन्होंने अपना एक ख़ास गुलाम मुयस्सरा तलब किया और सरदार की खिदमत में इसे पेश करते हुए बोली, सरदार सफ़र में ये आपके भतीजे का खिदमतगार होगा, इनका हर हुक्म मानेगा, इनके लिए हर तरह की आसानी करेगा। सरदार अबू तालिब खुश हुए, दुआ देकर चले गए। काफिला तैयार हो गया और बसरा की तरफ रवाना हो गया। सईदा का गुलाम मुयस्सरा, जिसे सैयदुल बशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसानी पैदा करने का हुक्म मिला हुआ था, वो पूरे सफ़र में हैरत अंगेज खुशी से उछल रहा था कि सईदुल बशरुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में गुजरे सफ़र में कुदरत की तरफ से इसके लिए कदम कदम पे कैसी रहमतें नाजिल हो रही हैं। राह में जो अजनबी मिलता वो अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का दरवीटा हो जाता। गर्म मौसम में सहरा में धूप की हिद्दत महसूस ना होती। मुयस्सरा ने गौर किया, एक ठंडे बादल की टुकड़ी गर्म धूप में साहिबान बनी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलती रहती। वो जो इन्हें आसानियाँ देने का हुक्म लेकर निकला था, इन्हीं के तफैल आसानियों में सफ़र करता रहा। बसरा पहुँचे तो काफिले का पड़ाव फिर वहीं था। 13 साल पुरानी जगह पे शहर के बाहर बनी कदीमी गिरजे के पास एक घने दरख्त के नीचे, यह वही दरख्त था जिसके नीचे कभी सैयदुल बशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में अपने ताया अबू तालिब के साथ आए थे और इस गिरजे में इस वक्त बहिरा राहब रहा करता था। अब इस गिरजे का राहब नस्तूरा था। मुयस्सरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्त के नीचे छोड़ के नस्तूरा के पास गया तो नस्तूरा ने लपक के मुयस्सरा का बाजू पकड़ लिया और आंखें फाड़ के इश्तियाक और अदब से दरख्त की तरफ देखते हुए पूछने लगा, इस दरख्त के नीचे कौन बैठा है? मुयस्सरा ने सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो नस्तूरा कहने लगा, इस दरख्त के नीचे जो बैठा है वो कोई नबी है। मुयस्सरा के लिए वो तिजारती सफ़र सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में हैरतों का सफ़र था, बरकतों का वसीला था, इनकशाफात का बहाना था। तिजारती नफ़ा भी 2 गुना हुआ। दिल दिमाग आसूदगियों से भर गया। बारिश भरे बादलों के आगे आगे ठंडी हवाएं जैसे खुशखबरी सुनाने के लिए मचलती आती थीं। ऐसे ही काफिले के मक्का पहुंचने से पहले खुशबुओं के वापस पलट आने की खबर मक्का पहुंच गई। मक्का के लोग अपने अपने कराबतदारों के इंतजार में दरवाजों पर लटक गए। मक्का की खुशबख्त सईदा खतीजा भी अपनी 2 मंजिला पुरवकार ऊंचे घर की बालकोनी में मगरिब में डूबते सूरज के रुख पर खड़ी अपने नसीबों में तुलू होने वाले माहताब की राह तकने लगी। इन्हें काफिले की आमद और अपने अंदाजे से कहीं ज़्यादा होने वाले मुनाफे के अलावा भेजे गए कज़न पे बीती हुई हैरतों के कुछ खबर मिल चुकी थी। काफिला मक्का पहुंच चुका था। मुयस्सरा एहतराम में मक्का के मुजाफ महरा जहरान में डूब गया था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मक्के में दाखिल हों। काफिले के तिजारती ऊँट मक्का की मंडी में जमा हो रहे थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पे आहिस्ता आहिस्ता सईदा उदैजा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ जा रहे थे। मक्का की पहाड़ियों की ओट में सूर्य गुरूब होने के लिए अदर से झुक रहा था और सईदा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ कायनात का दिल, उजाले का महवर, मरकज सैयदुल बशर का ऊँट होले होले कदम बढ़ा रहा था। सईदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर की छत से दूर ही से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। डूबते सूरज की तिरछी धूप में कोई किरण आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे ना पड़ रही थी। चेहरे पुरनूर फिर भी तुलू होते सूरज की तरह चमक रहा था। इनके सर के ऊपर धूप के रुख में 2 बड़े परिंदे अपने पर फैलाए साया किए साथ साथ उड़ रहे थे। सईदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथ खड़ी अपनी सहेली नफीसा को कांधा पकड़ के झंझोड़ा और हाथ के इशारे से इधर मतवज्जा किया जिधर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 काबों के साए में ऊँट पेड़ बैठे इधर आ रहे थे। सईदा रज़ियल्लाहु अन्हु और इनकी सहेली नफीसा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट के उड़ते एक एक कदम को देखा। लम्हा लम्हा वो करीब आते जाते। इनके चेहरे पे महीनों की गर्म धूप और सहरा की बज़म कर देने वाली गर्मी का असर ना था। चेहरा शाम के साए में सुबह के उभरते सूरज जैसा शफाफ और बेदाल था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा के दरवाजे पे पहुंच गए तो सईदा लपक के नीचे पहुंची, आए हुए कज़न की खातिर मदारत की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुकी आंखों से धीरे धीरे निकले लफ्ज़ों में ठहर ठहर के खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की। मुख्तसरन सफ़र का अहवाल सुनाया, मालो असबाब का जिक्र किया, अंदाजे से कई गुना ज़्यादा मिले मुनाफे की बात की और जादू ले के पलट गए। सैयदा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के सुन के जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। देर तक मबहूत हुई, वहीं खड़ी रहीं।
सईदा रज़ी अल्लाह अन्हु की सहेली नफीसा भी छत से उतर के इनके पास आई खड़ी थी। इस बार इसने इनके कांधा हिलाया और मुस्कुरा कर पूछा, क्या हुआ? सईदा रज़ी अल्लाह अन्हु 40 साल की बावकार, बाफ्तियार, बाहिम्मत होगरू खातून थीं। 2 शादियाँ इनकी हो चुकी थीं। पहली शादी अबू हाला बिन बनाश तमीमी से हुई, जिससे 2 लड़के हाला और हिंद हुए। पहले खामन की वफात के बाद दूसरी शादी अतीक बिन आबिद मखजूमी से हुई, जिससे एक लड़की हिंद हुई। दूसरे खामन की वफात को अभी कुछ अरसा हो चुका था। मक्का के कई रईस इन्हें शादी का पैगाम भेज चुके थे। उन्होंने हामी ना भरी थी, मगर लगता था इस लम्हे जैसे वो किसी फैसले पर पहुंचने वाली हैं। रात को इनका गुलाम मुयसरा भी पहुंच गया। मुयसरा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में जो हैरान कुन बातें देखी कह दी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरब्बत, मोहब्बत, खुलूस, सच्चाई, दयानत, अमानत और हुस्न इखलाक की बातें की। महीनों के लंबे सफ़र में किसी हम सफ़र के बारे में कौन सी बात छुपी रहती है? सब बातें जाहिर हो गईं। धूप में बादलों के छत, दरख्त की टहनियों का अदब से साये के लिए सरकना और नस्तूरा के कहे निफाज भी इसने सब बता दिए। सईदा रज़ी अल्लाह अन्हु तो पहले ही अपनी आंखों में सितारे चमकाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोच रही थीं। मुयसरा की बातें सुन के भागी अपने चाचाजाद आलिम व दाना भाई वर्का बिन नौफल के पास गई। मुमकिन है उन्होंने वर्का की बहन उम्मे कतीला से भी कोई बात की हो, जो 26 साल पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला के माथे पे अलवही नूर देख के इनकी शादी के दिन इनसे शादी का मुतालबा कर बैठी थी। उम्मे कतीला ने भी शर्मदी नूर का किस्सा अपने भाई वर्का बिन नौफल से ही सुना होगा। वर्का बिन नौफल सईदा से उम्र में काफ़ी बड़े थे और तलाश हक में उन्होंने ना सिर्फ कई लंबे सफ़र किए थे, बल्कि कदीम मुकद्दस मखतूतों की तहरीरों से भी आशना थे। उन्होंने सच्चाई की तलाश के अपने सफ़र में अपना मज़हब भी बदल लिया था। वो अपने वक्त की बेहतरीन मज़हब ईसाईयत पर थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम बशारतों और खुश खबरियों से आगाह थे। सईदा खुदीजा पहुँच गई इनके पास। उन्होंने सईदा सिर्फ 2 बातें सुनी तो कुछ लम्हे अदब में खामोश हो गए। फिर अटल फैसला कुन अंदाज में ताने हाथ की इशारत वाली उंगली उठा के बोले, खदीजा, अगर जो कुछ तुम कह रही हो वैसे ही है तो वो शख्स इस कौम का नबी है, इस जहां के सारे जहानों का होने वाला निजात दहिंदा है। बरका बिन नौफल ने सईदा खदीजा की बातें सुनकर इसी वक्त एक कसीदा लिखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जिसके कुछ अशार यूं हैं। ऐ खदीजा, तुमसे बार बार नबी की औसाफ सुन के मुझे इनके ज़हूर का शिद्दत से इंतज़ार है। मुझको उम्मीद है कि मक्का या ताइब से तेरे कौल के मुताबिक मैं ज़रूर इस नबी का खरूज देखूंगा। गोशा नशीन आलम का जो कौल तुमने बताया है, मैं नहीं समझता इसमें देर या गलती हो। वो खबर यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब हम में सरदार होंगे और जो इनसे मुकाबला करेगा वो इसे मगलूब करेंगे और तमाम शहरों में नूर जाहिर होगा। लोग इस नूर के साथ हक और रास्ती इख्तियार करेंगे। जो इनसे मुकाबला करेगा नुकसान उठाएगा, जो रास्ती से पेश आएगा आसाइश मिलेगी इसे। काश मैं इस वक्त मौजूद रहूं और मैं सबसे ज़्यादा इनकी पैरवी करने वाला हूँगा। मैं इस दीन में दाखिल हूँ जिसको कुरैश बुरा समझें और शोरगुल मचाएं। अगर मर गया मैं तो जो शख्स जवान है अनकरीब इनका क्रूज देखेगा। शायद सईदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बुजुर्ग चाचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से अपने दिल की बात भी कह दी। बहरहाल सईदा ने अगले दिन भी अपनी सहेली नफीसा से कुछ न छुपाया। नफीसा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। उस तिजारती सफ़र में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयशुदा 2 गुना मुनाफे से भी 2 गुना नफ़ा मिला था। 4 ऊँटों के बजाय 8 ऊँट मिले थे। एक ऊँट ही ज़माने में 400 दिरहम पे लगभग होता था। इन दिनों 3000 से ऊपर दिरहम का मुनाफा एक सफ़र में काफ़ी माकूल समझा जाता था। सईदा नफीसा बिनते मिनिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जवान हैं, खूब रूह हैं, कौन सी बात आपकी शादी से मना करती है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, वसाइल हो गए तो शादी कर लूँगा। नफीसा बोली, अगर वसाइल का मसला ना रहे तो फिर सोचेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, कैसे? वो मुस्कुराते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के कुछ कह देने का सोच के शर्माने लगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। नफीसा फिर बोली, मेरी सहेली सईदा खदीजा के बारे में क्या राय है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से नफीसा की तरफ निगाह की, जैसे पूछ रहे हों, इनका जिक्र क्यों ले आई हो? नफीसा इस बार दिल खोल के मुस्काई और ज़ेरे लबी पूछने लगी, आप खदीजा से शादी करेंगे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हा कुछ न बोले, फिर खुद कलामी के अंदाज में गोया हुए, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मुझसे क्यों शादी करेंगी? नफीसा मुस्कुराई और बोली, ये बात आप मुझ पे छोड़ दें,
अपनी बात कहें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पुरवकार आंखें हया से कपकपाई, कनपटी पे सुर्खी की एक लहर आई, बंद होंठ एक लम्हे को हिले और आवाज आई, जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं राजी हूँ। नफीसा खुशी से जैसे दो हाथ जमीन से उठ गईं, भागी सईदा के पास आईं और मुस्कुरा के इन्हें अपने बाजू में लपेट के खुशखबरी सुनाने लगी। सैयद रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के दर दीवार मुस्कुराने लगे। बात बुजुर्गों तक पहुंच गई। सैयद रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद खालिद वफात पा चुके थे। इनके चाचा उमर बिन असद तक बात पहुंचाई गई। सैयद रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई अमाम की शादी इन्हीं दिनों आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी फूफी सफिया से हुई थी। सफिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उमर चाचा हमजा की माँ जाई बहन थी। सफिया से हमजा और हमजा से बात सरदार अबू तालिब तक पहुंच गई। सरदार ने हमजा को ही रिश्ते के लिए बाकायदा पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब किया। बात पक्की हो गई, शादी की तारीख तय हो गई। सरदार अबू तालिब अपने कबीले बनु हाशिम की बारात लेके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनाए सईदा के घर जा पहुंचे। सईदा के चचा ने 500 दिरहम हक महर पे सईदा खतीजा को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ब्याह दिया। निकाह का खुतबा सरदार अबू तालिब ने पढ़ाया। निकाह के खुतबे के बोल यूं थे जो सैयदना अबू तालिब ने पढ़े। इमाम बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से एक ऐसे नौजवान हैं कि शर्फ, रिफ़त, फजीलत और अक्ल में अगर किसी का मुआलना किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बारी कहेंगे। अगरचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलील माल हैं, लेकिन माल एक ज़ाइल होने वाला साया है और एक ऐसी रियायत है जो वापस की जाने वाली है। ये खदीजा बिन्त खालिद के साथ निकाह की तरफ रागिब हैं और इसी तरह खदीजा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के लिए माइल हैं। शाम के सफ़र से वापसी पे 2 महीने और 25 दिन बाद ये मुबारक शादी का दिन था। शादी हो गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा की ख्वाहिश के मुताबिक अपने ताया सरदार अबू तालिब के घर छोड़ के सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के मतमूल शानदार घर में रहने लगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।